Best condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. तो सीसीएस की बड़ी बैठक के बाद अब एमईए की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना। हम आतंकी हमले की निंदा करते हैं। एमईए ने कहा सिंधु जल समझौता रद्द किया गया। इसके अलावा पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द किया गया। ये भी बड़ी खबर अब सामने आ रही है। 48 घंटे का समय पाकिस्तानियों को दिया गया है। छोड़ के जाना पड़ेगा। पाकिस्तान हाई कमिश्नर को यहाँ कहा गया है कि आप यहाँ से 1 सप्ताह के अंदर सभी पाक राजनयिक जो हैं भारत छोड़ के जाए और पाक जो हाई कमिश्नर है उसको बंद किया जाएगा। तो डिप्लोमेटिक स्तर पर सबसे बड़ा फैसला है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को यहाँ से बंद किया जाएगा। जो इंडो और दूसरी भारत सिंधु नदी जो समझौता है उस पर भी विराम लगा दिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है राहुल। जो अभी सीसीएस के फैसले जो मीटिंग हुई है 2.5 घंटे जो बैठक हुई है और अमित शाह और अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 20 मिनट की अलग से बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया। और एक बात और है, जो सीसीएस में जो कार्रवाई की जाती है चाहे वो आतंकवादियों के खिलाफ हो या सैन्य कार्रवाई हो उसका खुलासा नहीं होता है। चूँकि एमईए ने ब्रीफिंग की है, यह डिप्लोमेटिक स्तर पर जो फैसला लिया गया है।
तो देखिए, डिप्लोमेटिक स्तर पर जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो हमारे संवाददाता लगातार आपके साथ साझा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़े फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं। हालांकि जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी आतंकियों के खात्मे के लिए बनाई गई है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं उन बड़े फैसलों का जिक्र एमईए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है, जिसमें अटारी चेक पोस्ट बंद किया गया, ये सबसे बड़ा फैसला। और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला है कि भारत में पाक दूतावास बंद होगा। हम आतंकी हमले की निंदा करते हैं, साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा है। तो सभी राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा, साफ तौर पर कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 48 घंटे का समय सभी पाकिस्तानियों को दिया गया है कि 48 घंटे में भारत छोड़ें, तो 48 घंटे का यह समय है। और इसके अलावा भारत में पाक दूतावास भी बंद होगा। सीसीएस में 5 बड़े ये फैसले लिए गए हैं। तो सीसीएस की बैठक समाप्त और समाप्त बैठक के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बड़ी बातें कही गई है कि कौन कौन से बड़े फैसले पाकिस्तान के विरुद्ध देश में लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है और पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया जाएगा और साथ ही सभी राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा, यह भी कहा गया है। तो कई बड़े झटके एक साथ पाकिस्तान को लगे हैं क्योंकि सीसीएस की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। हालांकि इन तमाम बड़े फैसलों का इंतजार सभी को था और अब ये फैसले सामने निकल कर आए हैं। 5 बड़े फैसले जिसका जिक्र लगातार हम आपके साथ कर रहे हैं कि सभी राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा। ये पाकिस्तानी राजनयिक है जिन्हें जल्द से जल्द अब भारत छोड़ना होगा। 48 घंटे का समय दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप देश को छोड़ें और साथ ही साथ पाकिस्तानियों का जो वीजा है उसे भी रद्द किया गया और भारत जो दूतावास है भारत में पाकिस्तान का उसे भी बंद किया जाएगा। तो कूटनीतिक तौर पर ये बड़े फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं। पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट कर मारने वाले दहशतगर्दों का काउंटडाउन शुरू हो गया है।